میرے آج کے پیغام کا عنوان ہے آخری انجام سے واقفیت۔ میں پڑھوں گا زبور 39، اس کی 4 اور 5 اور 6 3 آیتیں۔ یہاں لکھا ہے، اے خداوند ایسا کر کہ میں اپنے انجام سے واقف ہو جاؤں، اور اس سے بھی کہ میری عمر کی میعاد کیا ہے، میں جان لوں کہ میں کیسا فانی ہوں۔ میں نے کہا تھا 3 آیتیں، لیکن میں نے ابھی ایک ہی پڑھی ہے، باقی 5ویں 6 آیت بعد میں پڑھوں گا، پھر سن لیجئے۔ زبور نمبر 39 اور اس کی کون سی آیت میں نے پڑھی ہے؟ 4 آیت۔ اس میں زبور کا جو رائٹر ہے داؤد، 3 درخواستیں اس نے خدا سے کی ہیں۔ داؤد نبی نے خدا سے 3 درخواستیں کی ہیں، اگر آپ نے آیت غور سے سنی ہے۔ پہلی درخواست، اے خداوند ایسا کر کہ میں اپنے انجام سے واقف ہو جاؤں۔ پہلی درخواست کیا ہے جی؟ بولیے، کیا پہلی درخواست ہے؟ اے خدا ایسا کر کہ مجھے پتا چلے کہ میرا اینڈ کیا ہے، میری زندگی کا انجام کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، رزلٹ کیا ہے۔ پہلی درخواست۔ دوسری درخواست، اس سے بھی کہ میری عمر کی میعاد کیا ہے، مجھے یہ بھی بتا دے کہ میں کتنے سال جیوں گا۔ اور تیسری درخواست، میں جان لوں کہ میں کیسا فانی ہوں۔ 3 درخواستیں ہیں داؤد کی اس زبور میں۔ پہلی درخواست جو ہے اس پہ میں اینڈ میں بات کروں گا، دوسری اور تیسری درخواست پہ ابھی بات کروں گا۔ کیا ریکویسٹ کی داؤد نے؟ وہ اس نے کہا ہے دوسری درخواست، میں جان جاؤں کہ میری عمر کی میعاد کیا ہے، مینوں تو دسی اے خدا کتنے دہاڑے جیواں گا۔ یہ ایک تو یہ درخواست ہے، اور دوسری یہ ہے، میں جان لوں کہ میں کیسا فانی ہوں۔ فانی کا مطلب فنا ہونے والا، مجھے پتا چل جائے کہ میں کتنا زیادہ فنا ہونے والا ہوں۔ تو یہ جو 2 درخواستیں ہیں، آئیے اب سب سننے کے لیے تیار ہیں؟ سب تیار ہیں؟ ایک ایک لفظ سننا ہے، ایسے سننا ہے کہ کوئی رہ نہ جائے، ایسے سننا ہے کہ آپ اس عبادت سے باہر جائیں اور آپ کہیں کہ جی پاسٹر ریاض صاحب آئے تھے، انہوں نے کلام سنایا ہے، اور آپ سے کوئی پوچھے جی کیسا کلام تھا، تو آپ اتنا کہہ دیں جی بڑا زبردست، واہ واہ واہ، اور وہ پوچھے جی کیا سنایا تھا، نہیں پتا مجھے، اچھا سن۔ میں یہ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں آپ سے کوئی پوچھے کہ کیا کلام تھا، آپ بتا سکے۔ 2 درخواستیں 3 ہیں، جن میں سے 2 درخواستیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور تینوں کا جواب میں بائبل میں سے دوں گا، باہر سے نہیں۔ تو پہلی یہ دوسری درخواست ہے، میری عمر کی میعاد کیا ہے۔ جب آپ کوئی چیز لیتے ہیں، ان کے اوپر اس کی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، میعاد لکھی ہوتی ہے کہ اس ڈیٹ کے بعد اس سے استعمال نہ کیا جائے۔ مشینیں جو ہیں ان کی بھی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے کہ اس ڈیٹ کو اس پہ ختم ہو جانا ہے۔ انسان کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، اس کے مرنے کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے۔ یہ بات مقرر ہے مرنا ہے، یہ بات مقرر ہے کہ موت آئے گی، لیکن یہ نہیں پتا کہ کب۔ تو اس کی درخواست کیا ہے؟ یہ جان جاؤں کہ میں کتنے دن جیوں گا۔ تو اس کے لیے جواب جو ہے 90 زبور میں سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ 90 زبور جو ہے یہ داؤد نبی نے نہیں لکھا، یہ موسیٰ کا ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ داؤد کے سارے زبور جو ہے داؤد نبی کے ہیں، جی نہیں، سارے داؤد نبی کے زبور نہیں ہیں، موسیٰ کے بھی ہیں۔ تو یہ 90 زبور موسیٰ کا ہے۔ اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، ہماری عمر کی میعاد 70 برس ہے، یا قوت ہو تو 80 برس، تو بھی ان کی رونق محض مشقت اور غم ہے، کیونکہ وہ
جاتی رہتی ہے اور ہم اڑ جاتے ہیں. اچھا, اس آیت کے مطابق جو موسیٰ نے تحریر کی ہے زبور 90, وہ تو کہتا ہے 70 یا 80 سال. یہ سننے والی بات ہے. اچھا, سانو کہتے ہیں 70-80, تو آپ 80 برس دے انہیں اپنی منسٹری بیابان دے سفر سی, آپ 120 سال ہو کے مرے ہیں. میری گل سمجھ آ رہی؟ سانو کی کہہ رہے ہیں انسان دی میعاد 70 یا 80, تے اپنی عمر کتنی سی موسیٰ دی؟ 120 سال کا ہو کے مرے ہیں. لکھا ہوئے زبور 34 کی 7 آیت سے لکھا ہوئے استثناء 34 باب 7 لکھا ہے کہ جس وقت موسیٰ دی وفات ہوئی وہ دی عمر 120 سال سی. تو پھر مطلب کیا ہوا؟ دوسروں سے وہ کہتے ہیں کہ میعاد 80 سال ہے اور خود 120 کا ہو کے مرا. اس کا مطلب ہے کہ اس آیت کا کوئی اور مطلب ہے, 70-80 نہیں ہے, مطلب کچھ اور ہے. آپ مجھے بتائیں کہ خدا کا خادم یہ کہہ رہا ہے 70-80 اور پھر ساتھ خود 120 کا مرا ہو کے مرا, تو اس کا مطلب ہے اس آیت کا مطلب کچھ اور ہے, 70-80 کا مطلب کچھ اور ہے. اس کا مطلب ہے جیسے محاورہ نہیں ہوتا 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات, کہتے ہیں 4 دن کی چاندنی, جیسے کہتے ہیں جی جوانی 4 دن دی. تو یہ محاورہ ہے. 70-80 کا مطلب ہے کہ مرنا ہی مرنا ہے. یہ نہیں کہ 70-80. یہاں جو 60 سال کے بیٹھے ہیں میں ان کو دلیری دینا چاہتا ہوں, مت گھبرائیں. 70 سال ہو گئے, گھبرانا نہیں کہ ہوئے ان سے 70 ہو گئے. موسیٰ نے لکھیا ہوئے دوتے اپنے زبور دے وچ, گھبرانا نہیں بھائی. اس کا مطلب ہے صرف 70-80 کا مطلب محاورہ ہے کہ فانی ہے زندگی. وہ ہاتھ کہہ رہے کیا جی لے گا جی 70-80 محاورہ. اچھا تسی پنجابی سنیا ہوئے گا, سنو بچے نو تھی 4 باری سمجھاؤ 5 باری سمجھاؤ تو پھر کہہ دیو میں تینوں 100 باری سمجھایا. اس کا کیا مطلب ہے؟ محاورہ ہے. تو یہ بھی 70-80 محاورہ ہے, کیونکہ خود 120 کا, اس کے بعد اس کا جو جونیئر نائب مقرر ہوا یشوع 110 کا ہو کے مرا. اس کے بعد آگے چلے جائیں سلیمان بادشاہ, وہ جو ہے تقریباً وہ بھی 100 برس کا ہو کے مرا. اور یسوع مسیح کا ایک شاگرد, سارے شاگرد شہید ہوئے تھے, شہید ہوئے, لیکن ایک شہید نہیں ہوا, وہ اپنی موت اس کو آئی اور وہ یوحنا ہے. اور وہ بھی 100 سال کے قریب اس کی عمر تھی جب اس کی ڈیتھ ہوئی. اور سلیمان میں نے کہا 83 برس کی عمر میں ڈیتھ ہوئی. آپ کہیں گے جی اس سے پہلے تو 9 سال 800 سال وہ پہلے کی بات ہے, موسیٰ کے بعد کی بات بتاتا ہوں. تو مطلب کیا ہوگا؟ مطلب سمجھ آ گئی کہ اس کا مطلب ہے دنیا فانی ہے, انسان نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے, چلے جانا ہے. 70-80 ایک محاورت ہے. میری عمر 72 ہے ابھی. میں نے 100 سال کے لوگوں کو ایکسرسائز کرتے دیکھا ہے دوڑتے وقت. 90-100 سال کی خواتین کو دوسرے ملکوں میں میک اپ کر کے ویل ڈریس ہو کے باہر شاپنگ مال میں دیکھا ہے, چلتی پھرتی ایکسرسائز, گاڑیاں چلاتی, اور آدمی بھی. تو کیا کلام غلط ہے؟ پھر تو ان کو مر جانا چاہیے 80 سال پہ. اس لیے بھائی گھبرانا نہیں. اگر کئی دفعہ کوئی 70 سے بڑھ جائے نا تو بھائی جی ہوتے بونس لگا ہے, پتہ نہیں کب چلے گا. ایسا نہیں, ایسا نہ کہا کریں. ہاں ایک بات یاد رکھنی ہے, موت تو ایک دن آنی ہے, آگے رہے گی, اتنا یاد رکھنا ہے. لیکن یہ نہیں کہ 70 ہو گئے تو بیک گیئر لگ گیا, 80 ہو گئے تو بس بونس, ایسا مت سوچے. لیکن اتنا یاد رکھیں کہ زندگی چند روزہ ہے. ہم نے جو آیت شروع میں پڑھی تھی وہ کیا تھی؟ زبور 39 کی 4تھی آیت, ابھی 5ویں 6ویں آیت میں پڑھ رہے ہیں. کیونکہ وہ آگے کہتا ہے کہ میری عمر کی میعاد کیا ہے, میں نے بتا دی. تو 5ویں آیت ہے, دیکھ تو نے میری عمر بالشت بھر کے رکھی ہے. بالشت کے اندر ایک گیٹ. زبور نویس داؤد کہتے ہیں میری عمر ایک گیٹ کے برابر ہے. اچھا گیٹ کے برابر عمر ہو سکتی ہے, اس کا مطلب یہ بھی محاورہ ہے. اس کا مطلب کہ تھوڑی سی ہے. اور میری زندگی تیرے حضور بے حقیقت ہے, اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. یقیناً ہر انسان بہترین حالت میں بھی بالکل بے ثبات ہے.
اس کا مطلب ہے اگر کوئی صحت مند ہے، چلتا پھرتا ہے، بھاگتا ہے، پہلوان ٹائپ بندہ ہے، ریسلر ہے، اچھی صحت مند کوئی بہن خاتون ہے، ایسی حالت میں جب کوئی بیماری بھی نہیں ہے، جب صحت مند ہے، پھر بھی بے ثبات ہے، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی اس بات کی؟ عمر کی بات نہیں ہے، کسی وقت بھی۔ اور آگے لکھا ہے در حقیقت انسان سایہ کی طرح چلتا پھرتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ سایہ سدا رہے؟ سایہ صرف دھوپ میں آپ کا ہوگا، آپ کا سایہ دھوپ کے بعد ختم ہو جائے گا۔ تو انسان جو ہے وہ سایہ کی طرح ہے، اور یقیناً انسان فضول میں گھبراتے ہیں اور ذخیرہ کرتا رہتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اسے کون لے گا۔ اچھے محل چبارے تیرے ہورنا نے مال لینے نے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو، اور اتنا معلوم ہی نہیں کہ ان کی جو عمر کی میعاد ہے ایک بالشت ہے، ایک گٹ ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے بالشت۔ تو یہ تو زبور میں اس میں لکھا۔ آپ کہیں گے سر نئے نامے سے بھی کچھ بتا دیں۔ یعقوب کا خط 4 باب 14 آیت یہاں لکھا ہے اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ ذرا سنو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے؟ بخارات کا سا حال ہے، بخارات کا سا حال ہے۔ بہنیں سنیں ذرا، آپ جب چاول پکاتی ہیں، ہنڈیاں پکاتی ہیں تو اس کی بھاپ اوپر آتی ہے نا، ہلو، کبھی آپ نے دیکھا کہ ہنڈیا پک جائے اس کے بعد بھی آپ کو بھاپ نظر آئے؟ کبھی بانچ نظر آئی؟ انسان کی زندگی کا حال بھاپ جیسا ہے، بخارات کا سا ہے، ابھی نظر آئے ابھی غائب، ابھی غائب۔ یہ یعقوب کے خط میں لکھا ہے، اس کا تو کوئی میعاد نہیں ہے، عمر کی کوئی حد مقرر نہیں۔ اچھا جو لوگ کہتے ہیں جی زندگی دن وہ تو لکھے آندے نے، کتے نہیں لکھا بھائی بچہ کلام چ کتے نہیں لکھیا کہ بھئی زندگی تو لکھی ہوئی سی، چلو جی انی لکھی سی جنی لکھی سی انہیں پوری کر لی، کتے نہیں لکھی، کسی کتاب چ نہیں ہے۔ ایک گل ضرور ہے، مرنا ہے، لیکن میعاد کتے نہیں لکھی۔ اگر داؤد کہتا ہے کہ میں 10 کنے دہاڑے جیواں گا، اس کا مطلب داؤد کو بھی نہیں پتا تھا، تو آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ اچھا ایک بات سنیے، ایک دفعہ قصور کے کسی گاؤں میں گیا اور میں کلام سنا رہا تھا، اور میں نے کہا کہ انسان کی زندگی کی کوئی میعاد نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کب مر جائے۔ تو میرے کلام کے دوران ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہتا جی مینوں پتا ہے۔ پاک نے میری رہنمائی کی تھی کہ اگر وہ سوال کا جواب دینے لگ جاتا تو بحث چھڑ جانی سی، تو جڑا میں کلام سنا رہا سی وہ ادھر ادھر ہو جانا سی، منتشر ہو جانا سی۔ وہ کھڑا ہو گیا بندہ، میں کہ انسان کی زندگی کی کوئی میعاد نہیں، بزرگ سی، کہنے لگا مینوں پتا ہے جی۔ خدا نے مینوں عقل دیتی، میں کہ بھائی جی تانوں پتا ہے؟ کہتے ہاں جی۔ میں کہ تسی بہہ جاؤ۔ میں کہ جنہوں نہیں پتا تو آپ ہاتھ کھڑا کرو، باقی سارے نے ہاتھ کھڑا کر لیا۔ میں کہ بھائی تانوں کلام تو بعد عبادت تو بعد تہاڈے نال گل کراں گا، اے جنہاں نوں نہیں پتا انہاں نوں سن لین دو، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد میں کوئی خواب اپنا سنایا اور بات ادھر ادھر کر دی گئی۔ تو بات یہ کہ کسی کو نہیں پتا، داؤد کو نہیں پتا، تو اسے کیسے پتا ہوگا؟ اچھا جی، جو بات یقینی ہے، اٹل ہے، وہ پتا کیا ہے؟ عبرانیوں 9 باب 27 ہے، عبرانیوں 9 باب 27 ہے، یا لکھا ہے اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا مقرر ہے۔ کیا لکھا ہے جی؟ آیت بولیے، عبرانیوں 7 باب کی 27 آیت میں کیا لکھا ہے؟ میرے پیچھے بولے، انسانوں کے لیے، سب بولے انسانوں کے لیے، پھر بولے انسانوں کے لیے ایک بار مرنا مقرر ہے، مقرر ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کب۔ اگر پتہ ہو تو پھر جو اگر پتہ ہو تو کوئی شخص بھی جہنم میں نہ جائے، وہ مرنے سے ایک دن پہلے توبہ کر لے۔ اگر پتہ ہو تو کوئی بھی کہے اچھا یار میں نے پتا ہے بڑی عمر رہی ہے، تو پھر کوئی بھی توبہ نہ کرے، وہ آخری دن کرنے انتظار کرتا رہے گا اور جہنم میں جانے سے بچتا رہے گا، لیکن نہیں پتا۔ وہ اردو کا ایک شعر ہے، موت کا ایک دن مقرر ہے، موت کا ایک دن مقرر ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب پتا کیا؟ وہ شاعر کہتا ہے کہ زندگی کا ایک دن مقرر ہے، میں خواہ رات بھر پریشان رہتا ہوں، کدوں مرنا ہے، کدوں کی ہو جانا ہے،
खाम खा परेशान होने का क्या फायदा, मुकर्रर तो है, जाना तो है, लेकिन ये पता नहीं कब। अच्छा आप सुनिए, जब कोई पैदा होता है, बेटी या बेटा, हम खुशी मनाते हैं, ढोल बजाते हैं, लड्डू बांटते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि बेटियों में ऐसा नहीं होता, ये अफसोस है। औलाद खुदाउन की तरफ से है, 127 नंबर में लिखा है औलाद खुदाउन की तरफ से, वहां लिखा है बेटा या बेटी, बताइए क्या लिखा है, बेटी लिखा है कि बेटा, औलाद लिखा है, दोनों खुदाउन। तो फिर हम उनकी पैदाइश में खुशी मनाते हैं, लेकिन याद रखें पैदाइश के वक्त से एक सफर शुरू हो जाता है मौत की तरफ। इधर पैदा हुआ, सफर किस तरफ शुरू हो गया, मौत की तरफ। एक एक कदम मौत की तरफ माना जाता है। तमाम दिन काम, दिन रात काम, खाना पीना, सोना, आराम करना, सैर और तफरी, एक दौड़ लगी हुई है, एक काम काज में मसरूफियत है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, और तमाम दिन पैसा कमाने की फिक्र, जायदाद बनाने की फिक्र, बच्चों की तरबियत की फिक्र, और बच्चों को स्कूल में छोड़ के आना है, लेके आना है, ट्यूशन में लेके जाना है, ट्यूशन से छोड़ के आना है, खेत में जाना है, हल जोतना है, ये करना है, वो करना है, और इसी धंधे, गोरख धंधे में जिंदगी खत्म हो जाती है और बहाना बन जाता है, बहाना बन जाता है। सब कैसे होता है, एक्सीडेंट हो गया किसी का तो कहते हैं जी खुदा वालों लिखी हुई सी, ऐसी बात नहीं है, बहाना बनता है। कैंसर, मेरी तरफ देखिए, मैंने आपसे वादा लिया था, मैंने कहा था ना कि आप मेरी तरफ देखेंगे, हेलो मेरी तरफ देखिए, हाँ जी। एक्सीडेंट, कैंसर, एक्सीडेंट, कैंसर, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोरोना, डेंगू, एड्स, बड़ा बुखार, छोटा बुखार, और कई तरह के पेचश, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह और शुगर, ये सब बहाना बनता है, क्योंकि सफर बचपन से पैदा होने से शुरू हो जाता है मौत की तरफ। तो मैंने दाऊद की जो दूसरी दरखास्त है ना कि मेरी मियाद क्या है और मैं कितना फानी हूं, इस पे मैंने बात करनी है। पहली दरखास्त क्या थी, अगर आपको याद हो, नहीं याद, ज़बूर 39 की 4थी आयत, पहली दरखास्त जो मैंने पढ़ी थी वो ये थी, ऐ खुदावंद इतना कर कि मैं वाकिफ हो जाऊं कि मेरा अंजाम क्या है। दाऊद कहता है मुझे बता दे, मुझे पता चल जाए कि मेरा अंजाम क्या है, एंड क्या, मेरे मरने के बाद क्या होगा। ये बात है तो सोचने वाली। मरने का तो पता चल गया, कभी भी इंसान मर सकता है। जब आंधी तेज आती है तो छोटे छोटे दरख्त, छोटे छोटे पौधे तो क्या, बड़े बड़े दरख्त भी गिर जाते हैं, तनावर दरख्त भी गिर जाते हैं, तो कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन दाऊद कहते हैं कि अंजाम क्या है, मरने के बाद मैं जाऊंगा कहां। हमारे अनपढ़ लोग, सॉरी मेरे बाप भी अनपढ़ था लेकिन वो निजात याफ्ता थे, अक्सर कहते थे, अनपढ़ लोग कहते हैं ए जात डिठा मिठा तेगला के सिठा, यानी उनको फिक्र ही नहीं है, उनको ये है कि बस इस जहान में खाना है, पीना है, घर है, कोठी है, कार है और दौलत है, बैंक बैलेंस है, बीवी बच्चे हैं, और बच्चे स्कूलों में अच्छे जा रहे हैं, अच्छे कॉलेजों में जा रहे हैं, हर एक अपना अपना घर है, सब कुछ है, लेकिन अंजाम क्या है। दाऊद बादशाह था, पावरफुल बादशाह, 16 साल की उम्र में खुदा ने उसको भेड़खाने से बुलाया, सैमुएल ने उसे मसा किया, इस्राएल की सबसे बड़ी जो सल्तनत थी मुत्तहिदा, क्योंकि इस्राएल का वो बादशाह था, पूरे इस्राएल का। बाद में उसके पोते के जमाने में इस्राएल टूट के 2 मुल्क बन गया, लेकिन दाऊद के जमाने में इस्राएल बड़ा मुल्क था और उसका अकेला बादशाह, और वो कहते हैं कि मुझे बता मेरा अंजाम क्या होगा। सब कुछ उसके पास था। आज जब को पैसा आ जाए ना, बुरी चीज नहीं पैसा, अच्छी बात है, हर एक बंदे की ख्वाहिश है जो पैसा है, आज पैसा आ जाए तो वो ये सोचते ही नहीं कि अंजाम क्या है, वो सोचते नहीं कि मरने के बाद क्या होगा। आज दाऊद का ये सवाल कि मेरा अंजाम क्या है, मैं चाहता हूं आप सब याद रखें कि आपका अंजाम क्या होगा मरने के बाद। 2 मंजिलें हैं, फिर सुन लीजिए।
मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं कोई बहुत बड़ा फिलासफर तो नहीं हूँ, बाइबल से मेरे पता चल गया, कलाम में दसिया दो मंजिलें हैं, अंजाम दो तरह के हैं, दो तरह के लोग हैं, दो तरह का अंजाम है, दो तरह के लोग। मिशन की बात नहीं है, कैथोलिक हो या प्रोटेस्टेंट हो, पेंटिकॉस्टल हो या मेथोडिस्ट हो, उसकी बात नहीं कर रहा। दो तरह के लोग हैं, गुनहगार और ईमानदार। खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दिला कबूल करने वाले और निजात दिला कबूल ना करने वाले, दो तरह के लोग हैं, और दोनों का फर्क अंजाम है। दाऊद कहता है मुझे बता कि मेरा अंजाम क्या है, मरने के बाद क्या होगा। दो तरह के लोग हैं, दोनों का अपना अंजाम है। कैसे कैसे लोग हैं? नंबर एक, जो यीशु मसीह को अपना दिल दे चुके हैं, जिन्होंने निजात पाई है, उनका अंजाम फर्क है। और वो जिन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया, जिन्होंने निजात नहीं पाई, जिनके गुनाह नहीं बख्शे गए, उनका अंजाम फर्क है। दोनों का अंजाम सुन लें। अच्छा भाई जी, जरा उन किसी को गिना देना प्लीज, किसी को आगे ना दे देना। दो तरह के लोग, दो तरह का अंजाम। दो तरह के लोग हैं, ईमानदार और गैर ईमानदार, निजात याफ्ता और गैर निजात याफ्ता। यीशु मसीह को जिन्होंने कबूल किया और जिन्होंने यीशु मसीह को रद्द किया, जिन्होंने यीशु मसीह के लहू को अपने दिल में, अपना दिल यीशु के लहू से धोया, और वो जो यीशु के लहू से नहीं धुले हुए। दो तरह के लोग हैं, दोनों का फर्क और अंजाम है। ज़बूर 39 की 4थी आयत में मैंने पढ़ा था, ऐसा करके अपने अंजाम से वाकिफ हो जाऊं, और इसका जवाब हमें मिलेगा इब्रानियों में से। नए अहदनामे में जवाब है। सुनना चाहते हैं? हेलो, कितने जो सुनना चाहते हैं? पुराने अहदनामे में दाऊद कहता है मैं जान जाऊं कि मेरा अंजाम क्या है। जवाब नए अहदनामे में मिलेगा, इब्रानियों 9वां बाब 27वीं आयत। यानी क्या? और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना मुकर्रर है, इसके बाद मैं बताने लगा हूं, इसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। अदालत होगी, खुदावंद यीशु मसीह अदालत करेगा। वाइस की किताब के 11वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है, ऐ जवान, ऐ इंसान, ऐ लड़की, ऐ लड़के, ऐ आदमी, औरत, अपनी जवानी में खुश हो, उसके अय्याम में अपना जी बहला, और अपने दिल की राहों में चल, और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। ये दाऊद का बेटा सुलेमान लिखता है, पावरफुल बादशाह, दाऊद से ज्यादा बेटा ज्यादा पावरफुल था, ताकत के लिहाज से, दौलत के लिहाज से। वो कहता है खुदावंद तुझको अदालत में लाएगा। अंजाम, दाऊद कहता है मुझे बता, पौलुस रसूल इब्रानी के खत में बता देता है कि अदालत होगी, और वाइस की किताब में भी अदालत का जिक्र है। अदालत होगी, हर गुनहगार की अदालत होगी, हर गुनहगार की अदालत। गुनहगार क्या होता है? मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर पास्टर साहब हैं, और ये आपके घर जाते हैं और आपको कहते हैं भाई या बहन जी तौबा कर लें, यीशु मसीह के लहू से अपने दिल को धो लें, अपने गुनाहों को छोड़ दें, यीशु को अपने दिल में दावत दे दें, तौबा कर लें, निजात पालें, और ये कह के चले गए। आप दो तरह का अमल करेंगे, या तो इनकी बात को कबूल कर लेंगे या उड़ जाएगी आपसे, या तो इनकी बात को कबूल कर लेंगे या नहीं करेंगे। थैंक यू। जो कबूल कर लेंगे वो तो निजात पा लेंगे, उनकी अदालत हो चुकी। यीशु मसीह सलीब पे उनके लिए, तमाम लोगों के लिए हुआ। यीशु मसीह ने जान दी, अपने सर जो है कांटों के लिए, ताज के लिए स्पुर्द कर दिया, पसली में बारा मारा गया, दाढ़ी के बाल नोचे गए, मुंह पे थूका गया, कुचला गया। और यशायाह लिखता है अगर हम उस पे निगाह करें कुछ हुस्न जमाल नहीं, आदमियों में मर्दूद, मर्दे गमनाक, रंज का आशना हुआ, लोग उससे रूह पोछते। मसीह आपकी खातिर, मेरी खातिर मसलूब हुआ। जब उसकी अदालत हुई
हेरोदिस के सामने और पिलातुस के सामने उसकी अदालत हुई। जब उसकी अदालत यीशु की हुई, आपने तौबा कर ली, तो इसका मतलब आपकी अदालत हो चुकी। आपकी तो जिन्होंने तौबा कर ली उनकी अदालत हो चुकी। यीशु मसीह ने जो अदालत आपकी सह ली है। आपने तो सिर्फ हाजिर होना है इनाम हासिल करने के लिए। जब यीशु आएगा, जब आसमान पे उठा ले जाएंगे, वहां आपको इनाम मिलने हैं। अदालत को यीशु मसीह ने आपकी ले ली है। लेकिन गुनहगार, मसीह को रद्द करने वाले, जैसे मैंने मिसाल दी थी, पास्टर साहब आपके घर आए, आपने उनकी बात नहीं मानी, खुदा के खादम यहाँ आए, स्टेज पे उन्होंने कलाम सुनाया, आपने उसे अपने ऊपर से उतार के फेंक दिया, ये समझ के कि ये गलत तालीम है, आपने यीशु मसीह को रद्द किया, आपकी अदालत होगी। और ये अदालत करेगा कौन? बताइए कौन करेगा? यीशु मसीह करेगा। यीशु मसीह क्यों करेगा? क्योंकि यीशु मसीह ने जान दी है, उसने दुख दिया है, दुख लिया है, सहा है हमारे लिए। अब गुनहगार के लिए जिसने जान दी है, फैसला भी वही करेगा, अदालत भी वही करेगा। ईमान की किताब उसका 17 बाब और उसकी 31 आयत में लिखा है, उसने एक दिन ठहराया है जिसमें रास्ते से दुनिया की अदालत यीशु मसीह की मार्फत करेगा, जिसे उसने मुकर्रर किया है, और मुर्दों में से जिंदा करके ये बात साबित कर दी है। यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा करने का मकसद ये है कि यही जिंदा होने वाला शख्स जो मुर्दों में से जीवता है, यही अदालत करेगा। तालियां नहीं बजाएंगे यीशु के लिए? अदालत यीशु के पास है, कोई और अदालत नहीं करेगा। कहते हैं जो मर्जी कहे हमें क्या, आप याद रखिए अदालत यीशु ने करनी है। यीशु अदालत, तख्ते अदालत पे इंसाफ करेगा। मैंने अभी तक कोई बात बाइबल की आयत के बगैर नहीं की, ताकि कोई ये ना कहे जी वो आए थे, जी वो पास्टर रियाज सादिक बड़ी बातें करके गए हैं, बाइबल में से तो उन्होंने बताया नहीं। मैं हर बात का सबूत आपको पढ़ के दे रहा हूं। इब्रानियों 9वां बाब उसकी 27वीं आयत और 28वीं लिखा, जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाहों को उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं, जो तौबा कर चुके हैं, जो निजात पा चुके हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना दिल दे दिया है, जिन्होंने यीशु के लहू को कबूल किया है, उसके कफारे को कबूल किया है, यीशु मसीह उनको दिखाई देगा। वो आसमान पे उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। हमारी बहन रशीदा या और अगर जिसने तौबा की, निजात पाई, जिन्होंने खुदा को कबूल किया, खुदा के साथ जिंदगी बसर की, वो जी उठेंगे। बहन रशीदा जी उठेगी और फिर खुदा का मुंह देखेंगे, खुदा उनके साथ रहेंगे, वहां इनाम मिलेगा, अदालत नहीं होगी। बोले हालेलुया। अच्छा, अदालत यीशु करेगा गुनहगारों की। क्यों? क्योंकि वो मर के जी उठ के उसने साबित कर दिया है कि अदालत उसी की है। यीशु की मसलूबियत को याद रखें, यीशु के कोड़ों की मार को याद रखें, यीशु कुचला गया याद रखें। क्रिसमस नजदीक आ रहा है, हम ये तो बड़ी खुशी से धूमधाम से मनाएंगे, यीशु चरनी में पैदा हुआ, लेकिन ये भी याद रखें वो चरनी में क्यों पैदा हुआ, वो अदना जगह पे क्यों आ गया, वो इतना शिकस्त क्यों हो गया। लिखा है वो आदमियों के लिए, इंसानों के लिए इतना पस्त हो गया कि उसने अपने आप को कुर्बान होने के लिए पेश कर दिया। फिर में दूसरे खत में लिखा है कि वो इंसानों के मुशाबे हो गया और यहाँ तक हो गया कि रास्ता फरमाबरदार रहा, मौत बाकी सलीबी मौत दोबारा की। यीशु के मुंह पे तमाचे मारे गए। कभी हमारे मुंह पे एक तमाचा कोई मार दे, कोई सुई चुभ जाए तो क्या हाल होता है? कोड़े मारे गए। और उनके जो कोड़े होते थे, उनके कोड़े इस तरह के होते थे कि वो जो कोड़ा होता था जो मारते थे, उसके अंदर शीशा पिलाई चीजें और शीशा पिघला हुआ उसमें डाला जाता था, कांटेदार ये वो होता था, क्या कहते हैं उसे, कोड़ा। और जब वो मारते थे, एक शख्स जिसको कोड़े मारे जाने हैं, उसकी होती थी और जो सिपाही था मारता भागता हुआ अपने कोड़े को घुमाता हुआ तेजी से आता था और जोर से आके कोड़ा मारता था। एक कोड़ा, दूसरा था, तीसरा उसके साथ, चौथा इसके साथ, बड़े मुशाक तरीके से, बड़ी महारत
से एक ही जगह पे नहीं, 40-39 कोड़े 39 जगह पे रखते थे जाके, और एक कोड़े पे जान निकल जाती है। लेकिन उसने यीशु ने हमारे लिए उफ नहीं किया, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ, उसने बड़े आराम से जिसने ये बर्दाश्त किया, जिसने ये बर्दाश्त किया वही अदालत भी करेगा। अब बदला नहीं है, ये कोई इंतकाम नहीं ले रहा कि मैंने तुम्हारे लिए जान दी और तुम ये नहीं कर सके, लेकिन वो फैसला उसके हाथ में है। हालेलुया, वो अदालत करेगा। यीशु की मसलूबियत को याद रखें, यीशु के दुखों को याद रखें, यीशु की दावत को याद रखें, यीशु के कोड़ों की मार को याद रखें, और जिस मकसद के लिए उसने खून बहाया है बड़े आराम से कह दें, सुने मेरी तरफ देखें, ऐ यीशु मैं गुनहगार हूं, मैंने तुझे रद्द किया, मेरे दिल को अपने खून से धो के पाक कर दे, ताकि तू आए तो मैं ईमानदारों के साथ ऊपर उठा लिया जाऊं। अदालत से बच जाओ, बच जाएंगे, जरूर बचेंगे, बशर्ते के यीशु के कफारे को कबूल करें। सिर्फ कह देना मेरे लिए मर गया। एक मिसाल देता हूं, सुनिए, मिसाल सुनिए। मिसाल ये है, अगर इस सड़क पे अनम रोड पे कोई गाड़ी आए और गाड़ी में ऐलान हो रहा हो, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, गाड़ी में डॉक्टर बैठा हुआ है, दवाइयां भी हैं, चेक करने का सारा सामान है, ब्लड प्रेशर भी फ्री चेक करते हैं, और आंखों का भी मुफ्त टेस्ट होता है। सब भागे आए, जल्दी करें, डॉक्टर बैठे हुए हैं, एक चलता फिरता क्लिनिक है यहाँ पे फलान चौक में खड़ा है, और कोई घर बैठे खुश होता रहे, बीमार, आंखें भी खराब, ब्लड प्रेशर भी उसका हाई, शुगर भी उतना ही, और घर बैठे खुश हो, वाह यार क्या बात है यार, बड़ी बात है, क्या बात है, हमारी गली में चल के आए, और घर बैठे खुश होता रहे, मुझे बताए ठीक हो जाएगा वो। हेलो, जब तक वो उधर जाके अपने आप को चेक नहीं कराएगा और इलाज नहीं कराएगा। अब अगर कोई ये कहे यीशु मेरे लिए हुआ, और यीशु को यीशु से दरखास्त ना करे, ऐ यीशु आ मेरे दिल में आ, मेरे दिल को अपने खून से धो दे, तू मेरे लिए मसलूब हुआ, जब तक ये ना करे, बड़ा दिन जिन्ना मर्जी मनाते रहो, ईस्टर जिन्ना मर्जी मनाते रहो, गुड फ्राइडे जिन्ना मर्जी मनाते रहो, जो मर्जी करो, कुछ भी नहीं होना, अदालत खड़े होना पड़ेगा। तो फिर अमली कदम उठाना जरूरी है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत, किस किस को ये आयत आती है? यूहन्ना 3:16, मेरे साथ मिलके बोले कठे, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अदालत नहीं होगी, हमेशा की जिंदगी मिलेगी, बच जाएंगे। सिर्फ एक शर्त है, यीशु मसीह को अपना दिल दे दे, यीशु को निजात देना कबूल कर दे, और जब यीशु को कबूल कर लेंगे आप निजात पाएंगे। और वो लोग जो जिन्होंने यीशु को दिल दिया, तौबा कर ली, निजात पाली, जब यीशु आएगा, अगर वो जिंदा हुए यीशु के आने पे, तो मौत का मजा चखे बगैर आसमान पे चले जाएंगे। बोले हालेलुया। और अगर मर गए, जैसे कि बहन रशीदा मर गई, फौत हो गई, अगर मर गए तो फिर भी कोई खतरा नहीं, यीशु आएगा और वो जी उठेगा। तस्वीर के खत में लिखा है, खुदावंद खुदा आसमान से ललकार, मुकर्रब फरिश्ते की आवाज, और खुदा के अंदर सिंगी के साथ उतर आएगा। पहले वो जो मसीह में हुए जी उठेंगे, और फिर हम जो जिंदा जिन्होंने यीशु को कबूल किया है वहां होंगे, मिलकर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे, उसका दीदार करेंगे, आसमान पे रहेंगे, वहां पे हमें अवार्ड सेरेमनी होगी, वहां इनामात मिलेंगे, खुदावंद के साथ हमेशा हमेशा शादवाली में रहेंगे। बोले हालेलुया। और बाकी नहीं जी उठेंगे, जब यीशु आएगा बाकी नहीं जी उठेंगे, और ना सारे उठाए जाएंगे। वो जो नीचे रह गए, ओहो, उनका कोई हाल नहीं है, उनका इस दुनिया में भी कोई हाल नहीं है, चलती फिरती लाशें, और मरने के बाद भी जहन्नम। दाऊद कहते हैं, मुझे बता मेरा अंजाम क्या होगा। आपको मैंने अंजाम बता दिया है, बचना है अंजाम से, झुक जाए उसके सामने। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने सर झुका लें,
मेहरबानी से आंखें बंद कीजिए। यसु नु कबूल कर जिंदगी तू पाएगा, यसु नु कबूल कर जिंदगी तू पाएगा, जे ना करे तौबा सीधा दोज़खानु जाएगा, जे ना करे तौबा सीधा दोज़खानु जाएगा। आज यीशु को कबूल कर ले, उसे अपना दिल दे दे, उसे कहे यीशु तेरा लहू मेरे लिए बहाया गया, तूने मेरे लिए जान दी, तूने हम अपना बदन मारने वालों के हवाले कर दिया मेरे लिए। मेरे दिल को अपने लहू से धो दे, मैं गुनहगार हूँ, मुझे पाक कर, मुझे निजात दे। आज मैं तौबा करता हूँ और इसके बाद अपनी जिंदगी पाकीज़गी में बसर करें और बाद में अपने पास्टर से कहें वो आपको बपतिस्मा दें। और अगर आप ऐसा नहीं करते, जे ना करें तौबा सीधा दोज़खान हो जाएगा। हुण भी दोज़ख ची ने चलते फिरते, मरण तो बाद अंजाम क्या है? जहन्नम। जहाँ इंसान मरेगा नहीं, जहन्नम में तड़पता रहेगा। उस अज़ाब से बचने के लिए यीशु को कबूल करें। अपनी आंखें बंद रखें और जो अभी इस क्रूसेड में, ये मेमोरियल सर्विस जो है, बशारती मीटिंग क्रूसेड, इसमें जो यीशु को अपना दिल देते हैं और कहते हैं यीशु आज मेरे दिल च आ, मेरे गुनाह माफ कर, मैं तौबा करना वा, तौबा करनी आ, मैं तेरे कलाम के मुताबिक बाद च बपतिस्मा भी लवांगी। जिहड़े तौबा करते हैं अपना हाथ खड़ा करो, मैं उनसे दुआ करांगा। शाबाश शाबाश, दिलेरी करें, आंखें बंद रखें। बाकी साहब अपने हाथ खड़ा करें जो आज यीशु को कबूल करते हैं, जो आज यीशु को अपना दिल दे रहे हैं। मैंने भी, यस मैंने देखा भाई जी, बाकी आप अपनी आंखें बंद करें। यस बहन जी मैंने आपको देख लिया जी, मैंने देखा। अपना हाथ ऊंचा कीजिए भाई, मैं देख रहा हूं जो हाथ खड़ा कर रहे हैं। ऐ खुदावंद कादिर मुतदी बाप, जिन्होंने हाथ खड़ा किया है और दिल से ये दुआ की है, गुनहगारों वाली दुआ, क्या यीशु मैं गुनहगार हूं, मेरे दिल में आ। जिन्होंने तौबा किया है, अपने गुनाहों की माफी मांगी है, मेरा ईमान है तूने उनके गुनाह बख्श दिए हैं। हालेलुया हालेलुया। और वो कह सकते हो दान जिसने बख्शे गए सब गुनाह, ते टके गए सारे औगन सदा। ऐ खुदाम ये तेरे साथ साथ चलते रहे। आज का कलाम इनके लिए एक कसरत से बाइस से बरकत हो और ये पास्टर साहब से मिल के उनको बताएं कि हमने तौबा की है, हमने निजात पाई है, हमें बपतिस्मा दिया जाए। ऐ खुदाम बाकी लोग जो अभी तक सोच रहे हैं, तेरा पाक रूह उनका पीछा करे, रूह कुदस कलाम का पीछा करे और ये लोग तुझे कबूल करें अभी। और इन्हें एहसास दिला के खुदावंद मौत का आना लाज़मी है, किसी वक्त भी आ सकती है, जवानी में, बचपन में, बुढ़ापे में, किसी भी वक्त। खुदावंद वो तुझे कबूल करें, अपना दिल दे। खुदावंद इस वक्त मैं भाई जुल्फकार के लिए, उनके भाइयों के लिए और दीगर जो हमारी बुजुर्गा रशीदा बीबी के अजीज हैं, उन सब के लिए तसल्ली की दुआ करता हूँ और तेरा खादम होते हुए यकीन दिलाता हूँ कि जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं, वो जिंदा हैं। अपने दोस्त, अपने भाई, तेरे खादम पास्टर व्यास बाग के लिए शुक्र करते हैं जिन्होंने मुझे मौका दिया, इनको बड़ी बरकत दे, इनकी मुश्किलें आसान हो, ये तरक्की करें, तुझ में बढ़ते जाएं। यीशु मसीह के नाम में आमीन।